My husband was a victim of darker energies. This was not the real Nitin, I know. This was not my husband. That's why I became a healer. Now I can sense it. I can see energies. I can see entities as well. What does Lama Fera means? कल पंडित ने कहा उसको नीलम पहनना है. Moment I told her to remove the neelam, she was feeling better. Can you share what kind of problems you have genuinely seen improving through this? Whether it's physical, whether it's mental, financial or anger issues. Problem है ही नहीं जो मैंने लामा फेरा से सॉल्व होते हुए नहीं देखा. अगर किसी को स्किन इश्यूज है लाइक पिगमेंटेशन, एक्ने, डल स्किन एंड ऑल, तो क्या रेमेडीज है विच अ पर्सन कैन कैरी विद हिमसेल्फ? कि ऊर्जा बहुत पॉजिटिव है, उसके फेस पे वो ऊर्जा नजर आती है. सैक्रल इज अबाउट सेक्सुअलिटी एंड क्रिएटिविटी. कंसीव करने में किसी को प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज ऑल अबाउट सैक्रल. वन डेली हैबिट जो एनर्जी क्लीन रखे. Chanting and salt bath. So can someone even resolve the past life karmas with कि किसी के लिए ना बुरा सोचो, ना किसी के लिए बुरा कहो, ना किसी के लिए बुरा करो. Hi Glow fam, welcome to Skin Coffee with Ghazal, and today's conversation is going to be truly different and insightful because we are diving into energy healing, aura cleansing and how it connects to our skin and overall well-being. Have you ever walked into a room and instantly felt heavy or uncomfortable without knowing why? That's energy, and today we are going to understand it. In today's world, we focus so much on external skincare, but very rarely do we talk about the energy we carry within. Because sometimes the real issues is not just on the skin, it's deeper, our aura, our emotions, our energy blocks. And to help us understand this better, we have with us an energy healer, aura reader and Lama Fera practitioner, Neha Marwa. Hi Neha, welcome Hi, to the podcast. Gazal. Thanks for having me here. It's really nice to be here. Neha, before we dive into our today's segment, I want to ask you, take a pause and ask you something about, about your personal journey. That what made you enter into this healing? Did you had any personal experience where you were facing a lot of negativity around? I had a roller coaster ride, and that ride was a dangerous one. So my husband was a victim of darker energies. He's a victim of darker black energies, and I Okay. was looking for the answer everywhere for almost 1.5 year. 1.5 साल तक मैं वो जवाब ढूंढती रही कि what is happening, why he's completely shifting. Well, he was not the real him. We had a love marriage, No. and we were together for almost so many years, and I could feel that this was not the real Nitin, I know. This was not my husband. Then he was a victim of darker energies done by a Muslim lady on my husband, and I was looking for the answer, and I found the answer in Lama Fera. 1.5 साल तक ढूंढती रही क्या हो रहा है, why he is getting away from me, why every single business was sinking, literally sinking. And then I found that with this aura detecting machine, I come to know he's a victim of darker energy. So वो जो roller coaster की ride थी, that's why I became a healer. Yeah. I thought what happened with me, I didn't want anybody else to face that energies. Acha. So have you ever seen any negative energy around you? Of course, you must be seeing that on a regular basis. Now I can sense it. I can Okay. see energies. I can see entities as well. After 11 years of practice, I can So when sense you it. see entities, like how do you react? I don't react. I try to avoid them because एक बार अगर entity से बात करना शुरू कर दिया ना, that every entity will come for help. At the time of sadhana, Acha. so I was sitting in a sadhana and I went so deep that a lady in red sari and red chuda came for the help. Then I asked my guru, sir, क्या करूँ इसका? ये तो पीछे आ गई है, बार बार बात करना चाह रही है. So sir told me that you have to choose which side you want to be. अगर उनकी हेल्प करनी है तो एक की हेल्प करिए, फिर दूसरों की भी हेल्प करनी पड़ेगी. And I don't want that. I don't want to work with entities. So I avoid that. So when entity comes to you, and when you ignore them, तो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता है आपके ऊपर? नहीं, entities are not that harmful.
I'm not talking about the darker entities. I'm just talking about the entities. They So don't have harm you you. ever okay? So have you ever met darker entities too? At the time of session, definitely a person who is having a darker energy, जो victim है, जिसके ऊपर black magic हुआ है, तब energy is releasing के time, yes, that can be impacted, but now I have that powers in me. माँ दुर्गा एंड महाकाली की एनर्जी है जिससे मुझे इफेक्ट नहीं Okay. आता. But once you told me that, एक बार आपको ऐसा हो गया था and you were really So yes, yeah, that was you really a very bad fell sick. Yeah. I felt that was the initial time of my healing, and I did knew 40 दिन तक अगर किसी के घर में डेथ हुई है तो 40 days तक उस घर की ऊर्जा हीलिंग नहीं करते. So I went there अच्छा. on I guess 15th day of the death. At the time of cleansing, I came in contact with the entity. अब वो एंटिटी मुझसे बात कर रही है, मैं उसके फादर को मैसेज दे रही हूँ, फिर फादर का मैसेज उस ऊर्जा को दे रही हूँ, एंड दैट वाज रियली डिस्टर्बिंग. दैट लिटरली ब्रोक माय हार्ट, एंड कुछ दिन तक बीमार रही. देन जैसे कहते हैं ना, हर एक्सपीरियंस से आप एक चीज़ सीखते हो. फिर पता चला कि 40 दिन तक उस घर की एनर्जी हीलिंग नहीं की जाती जिस घर में डेथ हुई है. सो दैट वाज डिस्टर्बिंग, वेरी डिस्टर्बिंग. Quite interesting to know. मतलब, yeah. Okay. So let's start with, Yeah. simple thing like what is Lama Fera healing? What does Lama Fera means actually? पहली बात तो लामा फेरा को बहुत लोग लामा फेरा कहते हैं मैम हमारी आप शादी कराते हो, वो लामा फेरा होता है ना पंजाबियों में, हाँ, फेरे लिए हाँ, जाते हैं. तो मैं सबको कहती हूँ इट्स लामा, नॉट लामा. सो लामा इज अ पर्सन हु फॉलो द फिलोसफी ऑफ गौतम बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा, एंड फेरा इज अ प्रोसेस ऑफ हीलिंग. जब कोई पेशेंट आता है मेरे पास तो एक मंत्रों से उसको फेरा दिया जाता है जिससे उसकी एनर्जी जो है रिलीज हो, नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो एंड पॉजिटिव अच्छा. एनर्जी रिस्टोर कर सके. Okay. सो इट्स लामा, अ पर्सन हु फॉलो द फिलोसफी ऑफ लॉर्ड बुद्धा, जैसे दलाई लामा. Hmm. So it's lama, not lava. Lot of people think it's lama. So when someone comes to you for, healing, Yeah. so how do you relieve that person mentally, emotionally? या Every कैसे ways, हेल्प करते हो? हर टाइप Yeah. से, अच्छा. emotionally, mentally, physically, by the soul. Like lot of bad energies impact you. कईयों की energies उसको physically challenge करती है, कईयों की emotional challenge करती है. तो किस चीज़ में उसका कौन सा चक्रा blocked है, I work on that chakra. First I work on their हाँ. IR, I work on their ऊर्जा, because ऊर्जा is real you. Body is just temporary. आपकी पहचान आपकी ऊर्जा से है. अगर आपकी ऊर्जा पॉजिटिव है तो आपकी लाइफ पॉजिटिव है. नॉट जस्ट इमोशनल, इट्स इमोशनल, फिजिकल, बाय सोल, इट्स एवरीथिंग. Okay. So do you use any tools or instrument for that? Yes, I use this aura detecting machine. Okay, interesting. So this machine tells me कि कितना % of negative energy है. So how does machine works? Can you show me? Yeah, sure. Yeah. So जैसे एयरपोर्ट पे जाते हैं, Yeah. मेटल डिटेक्टर्स रहते हैं, राइट, वो बीप करते हैं. इस टाइप की ही मशीन है, उसकी टेक्नोलॉजी यही है. इसके अंदर सैम्पल्स रहते हैं. अगर मैं इसमें गोल्ड का सैंपल डालूंगी तो ये गोल्ड डिटेक्ट करेगा, सिल्वर का सैंपल डालूंगी तो सिल्वर डिटेक्ट करेगा. इससे मैं जन्म पत्री बना सकती हूँ किसी की. तो आई हैव ऑल द सैंपल्स, चक्रास के, कालस के, स्टोन्स के, प्लैनेट्स के, एंड इट कैन टेल यू एवरीथिंग अबाउट योर ऑरा. इट कैन टेल यू एवरीथिंग अबाउट योर लाइफ ऑल्सो. You had given me this card. So let's see, just to show the audience ki how this tool works. Sure. So can you check my root chakra? डेफिनेटली. Yeah. सो इसमें यू कैन सी मैंने रूट चक्रा का सैंपल डाला है. एंड so your root chakra is completely balanced. Oh, You can wow. make a lot more money and you can be very stable. Lot of money, and keep manifesting also because your Oh, root wow. chakra is good. I didn't know that. Yes. Okay, great, Neha. So, how do you use this card? How when you give this card to me, तो ये आप क्या लिख के देते हो इस कार्ड में? So I gave you the number of like the percentage कौन सा आपका चक्रा blocked है, कौन सा आपका unblocked है, your IR, if you are carrying any kind of dark energies, everything will be mentioned in that card. और ऐसा कार्ड हर जैसे हमने फर्स्ट ट्रीटमेंट करा, फिर सेकेंड टाइम हम फिर स्कैन करते हैं, टिल द टाइम एवरीथिंग कम्स अप विद 0, that will be your last session.
Oh wow. So that this card helps us a lot. It's just again like a blood test report. आपका ऑरा कितना बैलेंस है, आपके चक्रास कितने बैलेंस हैं, एवरीथिंग विल बी इन द कार्ड. Great. सो इसके बारे में और भी कुछ बताती हूँ, है ना. Hmm. Why aura detecting machine is important before any kind of healing therapy. जैसे you go to a doctor, तो डॉक्टर को आपको स्कैन करना, तो डॉक्टर कहेगा ना गेट मी अ ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, विटामिन कितने हैं, क्या सिस्टम है, ब्लड चाहिए, यूरिन चाहिए, तो स्कैन व्हाट इज हैपनिंग इन योर बॉडी, तभी आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है. ऐसे ही पहले स्कैनिंग की जाती है कि विच चक्रा इज ब्लॉक्ड, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी यू आर होल्डिंग, सिर्फ ईवल आई है, डार्क एनर्जीज है या एंटिटी एनर्जीज है, और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है. सो दिस मशीन रियली हेल्प्स मी टू स्टार्ट एंड वर्क ऑन द रूट कॉज. Oh, Yeah. so you heal and balance chakra with this machine. You can even tell like अगर किसी को शुगर है या किसी को बीपी है, Yes. तो will that machine tell? Yeah, it will. Oh. Because whatever happens in your body, first it happens in your aura. पहले आपकी ऊर्जा है, फिर आपकी बॉडी है. तो आपकी जो भी प्रॉब्लम आती है वो पहले आपकी ऊर्जा में आती है, फिर आपकी बॉडी में आती है. तो अगर किसी को शुगर है और आपने इसे डिटेक्ट किया है, तो कैन यू हील दैट? I cannot remove it from the root, but yes, I can relieve the patient थोड़े हद तक. अगर कोई प्रॉब्लम उसकी बॉडी तक आ चुकी है, अगर सिर्फ ऑरा में आ रही है और परसेंटेज बहुत कम है, देन डेफिनेटली आई कैन हील. मगर अगर वो बॉडी तक एंटर कर चुकी है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है. Interesting to know. Okay. So apart from negative energies, you can even tell the person कि क्या diseases है body में. Yes, And but even- I tell you one thing, usually I don't tell that because your subconscious mind plays a powerful role. अगर मैं किसी को बताऊंगी आपको ये होने अगर वाला किसी है, ने पूछा है तो you tell. डेफिनेटली, अदरवाइज आई ट्राई टू अवॉइड. अदरवाइज Okay. यू नो क्या होगा, अगर उसकी बॉडी में अभी तक वो चीज़ प्रॉब्लम आई भी नहीं है, बट मेंटली वो सोच रहा है, सबकॉन्शियस माइंड उसका वर्क कर रहा है, देन ही और शी इज अट्रैक्टिंग मोर ऑफ इट. सो इट्स बेटर टू सिर्फ एनर्जी पे काम किया जाए, चक्रास पे काम किया जाए, कलर्स आपके ग्रह क्या है, आपके स्टोन्स क्या है, दैट इज अ बेटर. Even I think ये मशीन ये भी बताती है ना आपके लिए स्टोन कितना सुटेबल है. कितना लकी है, कौन सा स्टोन आपको सूट कर रहा है, वो सब कुछ बताती है. ओके. और Right. कितना बेनिफिट देने वाला है वो. ऑफ कोर्स. हाँ. किसी ने नीलम पहना हुआ था और शी सेड मैम बहुत डिस्टर्बेंस रहती है, और उसके ऑरा को वो नीलम सूट ही नहीं कर रहा था, मगर किसी सो कॉल पंडित ने कहा उसको नीलम पहनना है. वो उसको इतना ज़्यादा कॉस्ट करा, एंड मूवमेंट आई टोल्ड हर टू रिमूव द नीलम, शी वॉज फीलिंग बेटर. ओके. राइट. Alright, so all this work together, astrology, healing and all, यस इट it's you are connecting the dots. कि अगर एस्ट्रोलॉजर ने सजेस्ट भी किया है तो you can But even still- check the energy. Yeah, it was not suiting her aura. अगर aura को सूट नहीं करा तो बॉडी को कैसे सूट करेगा? So is the when you know do Lama Fera healing sessions, तो impact immediately मिल जाता है या a person has to take multiple sessions with you? तो इसका जवाब एक एग्जाम्पल से देना चाहूँगी. अगर दो पेशेंट्स हैं और वो डॉक्टर के पास जाते हैं, एक को सिर्फ फीवर है और दूसरे को कैंसर है. फीवर को तो लिख के दे दिया 3 दिन की मेडिसिन लो एंड यू विल बी पैरासीटामोल और कुछ दवाइयाँ एंड यू विल बी ओके. और अगर कैंसर वाला पेशेंट कहे कि इसको तो 3 दिन की दवाई दी है, मुझे क्यों भाई ऑपरेशन बोल रहे हो, ऐसा नहीं होता. राइट. सो द परसेंटेज ऑफ नेगेटिव एनर्जी इन समवन्स ऑरा, अगर किसी का 100% नेगेटिव एनर्जी है तो ही और शी नीड्स मोर ऑफ हीलिंग. अगर किसी का 2 या 3% है तो उसको 1-2 सेशंस में ही फर्क पड़ जाएगा. Okay. Yeah. So after healing the person feels heavy, मतलब उसको कुछ प्रिकॉशंस रखने चाहिए. और आपने अगर किसी की नेगेटिव एनर्जी रिमूव की है तो ऐसा तो है नहीं कि वापस टुमारो ही वोंट हैव दैट नेगेटिव एनर्जी अराउंड. डेफिनेटली व्हेन वी वॉक वी गेट अ लॉट ऑफ Yes. नेगेटिव एनर्जी अराउंड अस. Yes, that's तो true. फिर रेगुलरली यू कैन नॉट हील दी पर्सन. तो क्या रेमेडीज है विच अ पर्सन कैन कैरी विथ हिमसेल्फ सो दैट अपने आप ही नेगेटिव एनर्जी So रिमूव there कर are a पाए. lot of things. First thing is salt bath. So ओके. that I tell it to everybody. Even I do that. ओके. I take salt, alum and kapoor, एलएम इज या फिटकरी. फिटकरी. हाँ. आप इन तीनों का मिक्सचर बना लो हाँ. और इससे
या तो टेक अ शॉवर एट द टाइम ऑफ शॉवर या रात को सोने से पहले, बिकॉज दिन में हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं एंड आई ऑलवेज टेल माई क्लाइंट्स डोंट स्लीप विद अ नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव ऊर्जा के साथ आपको उस बेड पे जाके सोना नहीं है, उससे पहले ही उसको क्लियर करना है। सो टेक अ बकेट, ऐड वाटर, ऐड द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, एलम एंड कपूर, उसके अंदर पैर डिप करो और हनुमान चालीसा का 3 बार चैंट करो। सो व्हेन यू चैंट हनुमान चालीसा, it's not Hanuman Chalisa, it's a very powerful mantra that release negative energy. और जो ये mixture है ना, that will absorb the negative energy. तो ये जो दो चीज़ों का combination है, that is very powerful and everybody should do it. अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो क्या क्विक स्विच है, मतलब क्या क्विक चीज है जो पर्सन अपने साथ कैरी कर सकता है? सॉल्ट। हाथ धो लो सॉल्ट से। सॉल्ट से हाथ धो लो तो भी इज नॉट नेसेसरी यू हैव टू डिप। यस, मगर जैसे हम लोगों से हेलो करते हैं, हम मिलते हैं, हम उनका ऑरा एक्सचेंज कर लेते हैं, हाथों से ही तो एनर्जी आती है। सो इट्स लाइक वॉश योर हैंड्स विद सॉल्ट whenever you're meeting someone, whenever you're meeting wash your someone. hands. Yes. Okay, interesting. Can you share what kind of problems like you have genuinely seen improving through this? I guess every kind of problem, whether it's physical, whether it's mental, financial or anger issues. ऐसा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं जो मैंने लामा फेरा से सॉल्व होते हुए नहीं देखा। अगर किसी के प्लैनेट से खराब है तो भी लामा फेरा वर्क करेगा? सो भगवान ने अगर लिखा है कि बारिश आनी है ना, हाँ, नेचर है तो आएगी ज़रूर, बट मैं आपको एक अम्ब्रेला दे दूंगी। अच्छा, you'll give, मतलब you will get a cure shield. it, shield, हाँ, yes. आपको एक कवच मिल protection जाएगा, एक प्रोटेक्शन मिल जाएगा, एक कवच मिल जाएगा, तो उतना नहीं भीगोगे। अच्छा, कोई प्लैनेट अगर आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है तो हीलिंग कैन कवर दैट नेगेटिव, राइट, कुछ हद तक उसको नेगेटिव को हटा देगा एंड पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकता है। हीलिंग से सबसे बेस्ट पार्ट है दैट योर थर्ड आई चक्रा गेट बैलेंस। अच्छा, जब प्लानिटरी इश्यूज आते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है लोगों के साथ, दे टेक रॉन्ग डिसीजन, गलत रास्ते पे जाते हैं, नशा करते हैं या गलत हरकतें करते हैं। मगर जब आपका थर्ड आई चक्रा बैलेंस है तब आप वो चीज़ करेंगे ही नहीं, तो वो इम्पैक्ट इतना कम हो जाएगा। अगर आपका थर्ड आई चक्रा बैलेंस है मगर आपका एस्ट्रो चार्ट खराब है, बट स्टिल यू नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर यू। सबसे बड़ी गलती लोग गलत टाइम पे गलत डिसीजंस लेके करते हैं। सो दैट वर्क्स वंडर्स, नो मैटर इफ योर एस्ट्रो चार्ट इज वीक, डजंट मैटर एट ऑल। अच्छा, ऐसे कोई केसेस हुए हैं कभी जब आपका लामा फेरा हीलिंग वर्क ही नहीं किया हो किसी के ऊपर? इट्स बीन 11 years एंड अभी तक ऐसा कोई केस नहीं हुआ। ओके, इट वर्क्स फॉर एवरीवन। इट वर्क्स फॉर एवरीवन। इट कैन रिमूव ब्लैक मैजिक ऑल्सो। तो सोचो कितना पावरफुल होगा। लामा फेरा में 12 सिंबल्स हैं, जैसे ओम और स्वास्तिक एक सिंबल है, वैसे 12 सिंबल्स हैं जो 4,50,000 मंत्रों से बनाए गए हैं। जस्ट इमेजिन एक एक सिंबल की कितनी पावर्स होंगी, एक एक सिंबल में कितनी सारी ऊर्जा होगी। सो इट लाइक क्योर एवरीथिंग फ्रॉम द रूट। इंटरेस्टिंग। सो हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन रियल हीलिंग and placebo effect? It is, healing is like for everybody. Okay. कोई उसमें डिफरेंशिएट है ही नहीं। And do people need to believe in it? अगर बिलीव नहीं होगा तो वर्क नहीं करेगी? नहीं, तब भी करेगी। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। रिसेंटली बिहार से एक कपल आया था मेरे पास एंड हस्बैंड वॉज नॉट ओके। he was, I could sense he was making fun of the machine and मजाक में, मैम ऐसा थोड़ी ना होता होगा, जैसे करते हैं। वेरी वेरी नाइस पर्सन, बहुत मज़ा आ रहा था उसे। जब मेरे पास चैलेंजेस आते हैं ना ऐसे, तो मुझे और मज़ा आता है। बट द मोमेंट आई स्टार्ट टेलिंग हिम अबाउट द वाइफ, दे वर न्यूली मैरिड, और जब मैंने उसका नाभि चक्रा चेक किया तो मैंने कहा यार शक्ल तो इतनी प्यारी है, तो किसी का सर फोड़ देती है। मगर बिकॉज एंगर इतना ज़्यादा था, उसका नाभि चक्रा इतना डिस्टर्ब था, तो ही वॉज लाइक मैम आपको कैसे पता, ये तो बहुत गुस्से वाली है।
फिर उसका जब मैंने सैक्रल चक्र चेक करा तो बहुत डिस्टर्ब था। न्यूली वेड का सैक्रल खराब है तो इसका मतलब उसको कंसीविंग में प्रॉब्लम आई होगी। देन आई टोल्ड कि आपको प्रॉब्लम है कंसीव करने में, एंड देन दे वर शॉक्ड, यस मैम अभी थोड़े टाइम पहले इसका मिसकैरेज हुआ है। एंड द मोमेंट आई स्टार्ट देयर सेशंस, उसकी वाइफ का एंगर इश्यूज बहुत बैलेंस होना शुरू हो गया। तो चैलेंजेस लेने में बहुत मज़ा आता है। Okay. So we have 7 chakras in our body, Yes. right? अब how a person will know कि मेरा ये चक्रा imbalance है. If a person is not going for a healing, but want to know कि मेरा कौन Okay. सा चक्रा Imbalance है, तो बिना मशीन के कैसे पता लगाया जाए? So root chakra is all about stability, Okay. your finances. अगर किसी को बहुत मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट नहीं मिल रहा तो इसका मतलब रूट चक्रा में प्रॉब्लम है। सैक्रल इज अबाउट सेक्सुअलिटी एंड क्रिएटिविटी। अगर किसी को उस एरिया में प्रॉब्लम है, कंसीव करने में किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब, और कॉन्फिडेंस ऑल्सो, दैट इज ऑल अबाउट सैक्रल। सोलर इज योर पावर. Solar plexus is your power. Solar plexus is your health. Solar is about your anger also. जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उसका इसका मतलब सोलर बहुत खराब है. Okay. हार्ट चक्रा इज अबाउट लव एंड रिलेशनशिप. अगर कोई इंसान रिलेशनशिप नहीं बना पा रहा किसी से, कई बार कईयों का पैटर्न रहता है कि प्यार होता है फिर भी रिलेशनशिप नहीं बना पाते, फाइट्स रहती हैं, किसी को प्यार नहीं कर पाते, किसी से प्यार ले नहीं पाते, दैट मीन्स उनका जो हार्ट चक्र है वो अनबैलेंस है. किसी को स्पीच में प्रॉब्लम है, अपना फीलिंग एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम है, इसका मतलब उसका थ्रोट चक्र अनबैलेंस है. कोई बहुत ओवर थिंकर है, दैट इज थर्ड आई चक्र. एंड कोई मेडिटेट नहीं कर पा रहा, दैट इज योर क्राउन चक्र. क्राउन चक्र इज ऑल अबाउट योर डिवाइन कनेक्शंस. सो ऐसे ही सातों चक्र के 7 फंक्शंस हैं. तो जैसे रेकी में दे आर मंत्रास फॉर हीलिंग, राइट? सो लामा फेरा में भी वो मंत्रास वर्क करते हैं कि आप अपने चक्रास को हील कर सकते हो? लामा फेरा इज ऑल अबाउट सिंबल्स एंड सातों चक्रों के मंत्र हैं. उसका लामा फेरा से कोई लिंक नहीं है. कोई भी वो कर सकता है. जैसे अगर हम रूट की बात करें तो द मंत्रा इज लम. हाँ, लम, या. बट द प्रॉब्लम इज पीपल डोंट नो हाउ टू चैंट इट. किसी ने बता दिया भाई लम चैंट करना है, लम लम कर रहा है, दैट डजंट मेक एनी सेंस. ओम, जैसे हम ओम बी चैंट करते हैं, या. ओम के साथ भी एक वाइब्रेशन होनी चाहिए. ओम की वाइब्रेशन बहुत अच्छी है. ओम को आप 21 टाइम्स चैंट करो, लम 21 टाइम्स कर लो, आपका रूट बैलेंस होना शुरू हो जाएगा. ओके, अगर डेली हम अपने चक्रास पे वर्क करें तो हमारे चक्रास में कोई इशू ही नहीं होगा. हम मेडिटेशन करें, चैंटिंग करें. सो इट्स लम, देन सैक्रल के लिए इट्स वम, सोलर के लिए इट्स रम, हार्ट के लिए इट्स यम, थ्रोट के लिए इट्स हम, क्राउन के लिए इट्स ओम, थर्ड आई के लिए इट्स ओम, एंड क्राउन के लिए इट्स ओम. ओके, फिर ओम. सो हर चक्रा का एक मंत्रा है, मगर उसको करना ऐसा है 21 टाइम्स ओम करिए, फिर आप उसके जो भी चक्रा अनबैलेंस है उसके मंत्रा को 21 टाइम्स चैंट करिए. बट इट हैज़ टू बी वेरी लाउड एंड विद द राइट वाइब्रेशन. एंड इज देयर एनी टाइम कि इसी टाइम पे हीलिंग करना है, सोते सोते भी मैं सबको कहती हूँ कि आप मंत्र जाप तब करो जब दिमाग में कुछ ना चल रहा हो. ठीक है, मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम, बट मैंने मोस्टली साधना करी है रात को 2-3 बजे व्हेन नथिंग इज इनसाइड माई माइंड. मुझे ये टेंशन नहीं है मैंने कोई सेशंस लेने हैं, मेरी कोई अपॉइंटमेंट है, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, ये नहीं है. व्हेन यू हैव टाइम एंड नथिंग इज. अब क्या रहता है, लोग पूजा करते हैं, मैम जैसे बहुत सारी आंटीज़ और लेडीज़ आती हैं, मैम मैं पूजा करती हूँ, होता ही नहीं है कुछ, बहुत पूजा करती हूँ. मैं कैसे पूजा करते हो? नहीं, मंत्र जाप करते हैं. मैं कहती हूँ सच्ची बताओ कैसे जाप करते हो. यहाँ पे आप मंत्र जाप कर रहे हो, दिमाग में क्या चल रहा है, मेड आने वाली है घर में खाना क्या बनाना है. सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से चैंट मंत्र व्हेन यू हैव टाइम, जहाँ पे यहाँ पे कुछ नहीं चल रहा. आधी रात को करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर तब करो जब तुम सिर्फ चैंट कर रहे हो. जैसे हमने अभी चक्रास की बात की है,
as you said that root chakra means for safety and all. तो अगर अगर मंत्र जाप या हीलिंग चक्रास के अकॉर्डिंग हीलिंग भी नहीं कर रहे हैं, अगर इतना भी नहीं कर रहे हैं, तो देयर इज अदर वे कि हम अपने चक्रास को हील कर सकते हैं. There is no other इज way. देयर एनी कलर थेरेपी टू इट? There is, but I won't suggest that it will work that efficiently. हाँ. जो मंत्र की वाइब्रेशन है वो किसी चीज़ की वाइब्रेशन नहीं है. ओके. यू कैन गो फॉर हीलिंग, मगर अगर आप हीलिंग नहीं कर पा रहे, तो करवा पा रहे, मंत्र जाप भी नहीं करवा पा रहे, देन नथिंग गोना वर्क फॉर यू. अगर आप अपनी ऊर्जा को वक्त नहीं दे पा रहे, हाँ. तो फिर क्या है? एवरीबडी इज गोज. तो अगर हम कहें कि आप जिम नहीं जाओ, अपनी बॉडी पे ध्यान मत दो, नहीं होता ना ऐसा. Yes. Everybody is so concerned about their bodies, but why not their aura? ऊर्जा is you. अगर ऊर्जा पे आप टाइम नहीं दे पा रहे, तो nothing gonna work for you. So what is the biggest misconception people have about energy healing? Like it's a magic. आपने किया और ऐसा रिजल्ट आएगा. हाँ, but ऐसा नहीं है. ऐसा of course It takes नहीं time. है. It takes time. Again, कितना % ऑफ नेगेटिव एनर्जी है, उसको डाइल्यूट करने में, उसको सॉल्व करने में टाइम लगता है. एंड उसके बाद आपको भी अपनी ऊर्जा पे काम करना पड़ रहा है. लाइक इफ़ आई एम क्लियरिंग योर नेगेटिव एनर्जी, इफ़ आई एम क्लियरिंग योर बैलेंसिंग योर थर्ड आई चक्रा, मगर घर जाके अगर वही नेगेटिव पैटर्न में आप फंसे हो, ये कैसे होगा, कैसे बिजनेस चलेगा, वो पैटर्न ही चेंज नहीं करोगे, तो इट्स नेवर गोना वर्क फॉर यू. सो इफ़ आई एम हीलिंग you, then you have to work on your thought process also. I'm lost in the talk only. अगर किसी को स्किन इश्यूज है, लाइक पिगमेंटेशन, एक्ने, डल स्किन एंड ऑल, तो वो भी बिकॉज ऑफ एनर्जी इम्बैलेंस हो सकता है. यस, बहुत. एंड वेट भी प्रॉब्लम है. अगर किसी को बहुत ज़्यादा वेट का इशू है, बिकॉज आपके इमोशंस होते हैं हर चक्रा में. अगर आप बहुत ज़्यादा पेन को संभाल के बैठे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके चक्रास को ब्लॉक कर देते हैं. और then वो you have yes, then you can gain weight. then you gain weight and that comes on your skin also. देखा होगा जो लोग पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते हैं या जो सत्संग कर रहे होते हैं, उनका फेस हमेशा ग्लो कर रहा होता है. हाँ, हमेशा जिसकी ऊर्जा बहुत पॉजिटिव है, उसके फेस पे वो ऊर्जा नज़र आती है. मगर अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसको अंडर आई सर्कल का प्रॉब्लम रहेगा, स्किन में प्रॉब्लम्स रहेंगी, एंड वेट की तो इश्यूज आते ही आते हैं. ओके. सो बिकॉज यू कीप ऑन डूइंग हीलिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो आपने कभी किसी के स्किन में वो इम्प्रूवमेंट देखा है बिकॉज ऑफ हीलिंग? स्किन में भी देखा है और वेट में भी बहुत ज़्यादा देखा है. जिनको लाइक आई डोंट टेल एवरीबडी कि मैं हीलिंग कर रही हूँ, आपके साथ ऐसा हो जाएगा. आई ओनली टॉक अबाउट एनर्जीज. तो मुझे लोग आके बोलते हैं, मैम जब से हीलिंग करवा रहे हैं ना, वेट लॉस हो रहा है, स्किन ग्लो कर रहा है, ऐसा हीलिंग की वजह से हो रहा है क्या? फिर मैं बोलती हूँ हाँ, बिकॉज वो जो स्टोर्ड इमोशंस थे ना, उसको हम रिलीज़ कर रहे हैं. जैसे हम उस नेगेटिव एनर्जीज को, नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करते हैं, इट स्टार्ट इम्पैक्टिंग योर बॉडी ऑल्सो. ओके. Yeah. सो कैन नेगेटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट ऑन योर फेस? Yes, it does. That's what I said. It reflects a lot. The more positive energy you have, the कैसे more पता you glow. चलता है that person is carrying a negative energy? सबसे पहले अंडर आई, डार्क अंडर आइज जो हो जाती है. इट्स नॉट विद एवरीबडी, बट सम पीपल्स. देन बिकॉज इट्स सबने इमोशंस तो नहीं पकड़ रखे ना, इट इज़ लाइक आउटर एनर्जीज ऑल्सो. प्रॉब्लम उनको आती है जिनके खुद के इमोशंस की वजह से एनर्जी ब्लॉकेज हो रही है. There are a lot of people who are suffering because people are not happy to see them happy. बिना बात के चिड़चिड़ा होना, That वो भी is- एक नेगेटिव Of एनर्जी course. है. अच्छा, मैं बताती हूँ. नेगेटिव एनर्जी ना एक वेट है. जैसे मैं आपको कहूँ गज़ल, मैं आपको 1 रुपए का सिक्का दे रही हूँ, एंड उसको आपको पकड़ के रखना है. कब तक पकड़ सकते हो? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन. 1 रुपए के सिक्के का कोई वेट नहीं है, मगर यू हैव टू होल्ड. तो ये पेन करेगा ना कुछ टाइम बाद, फिर ये भी पेन करेगा, फिर हाथ भी पेन करेगा, राइट? सो वो नेगेटिव एनर्जी वो 1 रुपए का सिक्का है जो हमने पकड़ा नहीं हुआ, जानबूझ के पकड़ाया गया है. दैट इज़ हियर. जो लोग बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो साइन ऑफ नेगेटिव एनर्जी. एंड ऑफ कोर्स सोलर प्लेक्सस अनबैलेंस है. ओके. सो मेनी पीपल नो अबाउट रेकी, एंड वो रेकी को काफ़ी अच्छे से समझते हैं. So what is the difference between Reiki and Lama Fera?
अगर रेकी के थ्रू अगर कोई चक्रा क्लीन कर रहा है, क्योंकि रेकी के थ्रू भी काफ़ी लोग नेगेटिविटी क्लियर करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? So let me tell you, I did Reiki 25 years back. 25 Okay. साल पहले मैंने रेकी की थी एंड 11 साल से मैं लामा फेरा में हूँ. एंड इट्स नॉट ओनली रेकी बट देर आर लॉट ऑफ अदर मोडालिटीज आउट देयर. मगर जो ब्लैक एनर्जीज लामा फेरा उस पर काम कर सकती है, नो अदर मोडालिटी, एंड आई बेट ऑन इट. नो अदर मोडालिटी कैन वर्क ऑन डार्कर एनर्जीज फ्रॉम द रूट. Okay. Yes. Okay. So Reiki works. Reiki also works wonderful, but if you want a faster and quick result, then Lama Fera is the only modality. जैसे रेकी में सिंबल्स होते हैं ना, चोकुरे, Right. सेहेकी, आई डोंट नो मच, बट वैसे ही सिंबल्स इवन लामा फेरा में भी होते हैं. अगर लामा फेरा के जो सिंबल्स हैं ना, जैसे हमारा जन्म किससे हुआ है? नाभि से हुआ है. हाँ. जब हम माँ के कोख में थे तो हम नाभि से जुड़े हुए थे, राइट? तो लामा फेरा में कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जिसमें हम डार्कर एनर्जीज नाभि पे इकट्ठा करते हैं और न्यास के थ्रू उसको यूनिवर्स में दे देते हैं. हाँ. ऐसी कोई और मोडालिटी नहीं है जो वो कर सके जो लामा फेरा करता है. जब हम डार्कर एनर्जीज को बॉडी से निकाल देते हैं और फिर हील करते हैं तो वो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है. ओके. सो कोविड के टाइम पे काफ़ी लोगों ने रेकी दिए घर से बैठे बैठे. यस. तो से सपोज आई हैव केप्ट वन टेडी बेयर इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई हैव अज्यूम दैट ये पर्सन को मैं हील कर रही हूँ, and then you are giving the energy to the teddy bear thinking that energy is reaching to the other person. So the same goes with Lama Fera कि आप अगर person cannot come to you तो you can give it like that. Yes, we do. We usually use dolls, not teddy bear. हाँ, dolls use करते हैं हम. अगर कोई lady client है तो I will prefer a lady doll. Otherwise male client है तो I will prefer male doll. और डॉल से बिकॉज उसका हमें पता है उसका नाभि कहाँ है, हमने कब उसका ऑरा लॉक करना है, दैट इज़ मोर प्रोमिनेंट. यस. एंड एक सिंबल से हम उस एनर्जी को डॉल में कनेक्ट करते हैं, दैट पर्सन्स एनर्जी, एंड देन वी स्टार्ट द सेशन. It's interesting to know ना. So the Some person, lot of people call it as a voodoo also, but it's not. Voodoo is on a darker side. Okay. And this is a positive energy. So how effective is that? क्योंकि अगर पर्सन खुद चल के आ रहा है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा या पर्सन इज सिटिंग एट होम एंड यू आर पासिंग दैट एनर्जी टू द पर्सन इज मोर इफेक्टिव? सो मेरे सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे क्लाइंट्स दुबई में हैं. अच्छा. मैंने अपना काम जब स्टार्ट किया था दुबई से ही करा था, एंड व्हेन आई केम बैक तो मैंने ऑनलाइन सेशंस दिए, और जिनको ऑनलाइन दिए थे उनको भी उतना ही इम्पैक्ट आ रहा था, उतना ही रिजल्ट आ रहा था जो दिल्ली में मेरे पास सेशंस ले रहे थे. सो द इम्पैक्ट इज़ ऑलमोस्ट सेम. अगर आप 101 सेशंस ले रहे हैं तो आपको 7 to 8 सेशंस लेने हैं, और अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो दैट नंबर्स इंक्रीज, अदरवाइज द रिजल्ट्स आर ऑलमोस्ट सेम. So can someone even resolve the past life karmas with Lama Fera? So not completely, because जो कर्मा है ना वो आपने अगर गलत किया है तो दैट विल कम बैक टू यू. Okay. एंड कर्मास प्ले अ वाइटल रोल. तभी मैं सबको कहती हूँ कि किसी के लिए ना बुरा सोचो, ना किसी के लिए बुरा कहो, ना किसी के लिए बुरा करो, हाँ. बिकॉज कर्मास कम बैक. ठीक है, उसका इम्पैक्ट ज़रूर कम करता है. अगेन बारिश आई है तो अम्ब्रेला आएगी, लामा फेरा आपको अम्ब्रेला देगा, मगर बट इट विल इम्पैक्ट यू. अच्छा, ऐसा भी बोला जाता है नेहा कि जब शादी हो रही होती है तो आप किसी के साथ आई कांटेक्ट मत करो. आई कांटेक्ट से बहुत जल्दी नेगेटिविटी गोज इनसाइड. आई डोंट नो ये कितना इट्स अ मिथ और ट्रुथ, क्योंकि गांव में लोग ऐसा काफी बिलीव करते हैं. So it's nothing about the eye contact, but it is नज़र. जब किसी लड़की की शादी हो रही है वो बहुत खुश रहती है. जो इंसान बहुत खुश रहता है ना उसके फेस पे वो ग्लो आता है. जब वो बहुत ज़्यादा ग्लो आता है तो उसको नज़र लग जाती है. तो इट्स नथिंग अबाउट द आई कॉन्टैक्ट, मगर नज़र लग जाती है, दैट इज़ द ओनली थिंग. ओके. सबके एनवायरनमेंट में भी नेगेटिव एनर्जी होती है, राइट? डेफिनेटली.
तो आपको कैसे फील होगा कि अब देयर इज अ नेगेटिव एनर्जी अराउंड यू, हाउ यू विल सेंस इट? आप बिस्लरी का पानी पीते हो ना, हाँ। है ना? कभी टैप वाटर ट्राई करें? नो। मगर कोई पिलाएगा तो पता चल जाएगा, हाँ। राइट? ऐसे ही मुझे बिस्लरी की इतनी आदत हो गई है, अगर मुझे टैप वाटर मिलेगा तो मुझे पता चल जाएगा। सो व्हेन योर अच्छा, ऑरा so when your aura is बिकम्स, positive, यस so you can sense it. यस, यू Okay. कैन सेंस इट, यू कैन सेंस। सिर्फ किसी को छूने से पता चल जाता है या रूम में एंटर करने से पता चल जाता है कि हाँ पापा यहाँ तो नेगेटिव एनर्जी है, एंड आई प्रेफर टू लीव दैट प्लेस। So how you are feeling right now at this place? I've told that before. People here have lot of beautiful energies, but space has a problem. Space has the problem. Yes. ओके, तो स्पेस को अगर फाइंड आउट करना है, बिकॉज ऑफ कोर्स वी डोंट हैव दीज टूल्स, तो स्पेस को कैसे क्लेंस कर सकते हैं बिफोर बाइंग और मे बी रेंटिंग एनी स्पेस Right. टू स्टार्ट समथिंग न्यू, हाउ टू क्लेंस दैट धुनी हवन पहले तो, इफ़ यू आर लाइक रेंटिंग द स्पेस ऑफिस के लिए या रहने के लिए, तो हवन ज़रूर करवाएं उस जगह का। हवन करवाएं, रोज़ धुनी करें, नमक वाले पानी से पोछा लगवाएं, दैट प्लेज अ वाइटल रोल। अगर धुनी रहेगी ना 6 बजे के बाद, गूगल की धुनी रहेगी, तो बहुत ज़्यादा एनर्जीज वो स्टेगनेंट नहीं होती, एनर्जीज रुकती नहीं है, क्लियर ऑफ हो जाती हैं। और जैसे व्हेन यू आर ऑन द शूट, जैसे आपने ये रेंट किया है स्टूडियो, इसको हम कैसे क्लेंस करेंगे? धुनी धुनी कपूर के लीजिए, आजकल तो गूगल के कप्स आ रहे हैं, बहुत इजी अवेलेबल है मार्केट में। धुनी कुछ भी स्टार्ट करने से पहले उस जगह को क्लेंस कर लो, धुनी कर लो। या वेरी वेरी इजी आपके लिए भी है, सारे ऑडियंस के लिए भी है, एक स्प्रे बॉटल लो, वो अपने पास ही रखो। स्प्रे बॉटल में पानी डालो, गंगा जल डालो, उसमें सॉल्ट ऐड करो, कपूर ऐड करो, फिटकरी ऐड करो, एंड अगर इफ़ इट्स रिलेटेड टू बिजनेस तो उसमें सिनेमन ऐड कर लो, सिनेमन पाउडर। इन सारी चीज़ों को ग्राइंड करो और पानी में स्प्रे बॉटल में डाल लो। वेन एवर यू गोइंग द स्प्रेड एवरीवेयर, इंस्टेंटली रिजल्ट आएगा, इंस्टेंटली स्टेगनेंट एनर्जीज क्लियर हो जाएंगे। Wow, interesting. If someone has negative karmic patterns, can healing override that? Not 100%, I have told that before, मगर कुछ रिजल्ट आएगा। कार्मिक अगेन, योर कर्मास प्ले अ वाइटल रोल इन what kind of life you are spending. It will definitely help you, but not, I won't say 100% it will. उसके लिए आपको अभी के पैटर्न भी ठीक करने पड़ेंगे। लोगों के साथ क्या होता है, बिकॉज पास्ट लाइफ में उनके कर्म ऐसे रहते हैं दैट दे मतलब कैरी द सेम स्टेप्स, तो आई नीड टू वर्क। आई डू काउंसलिंग ऑल्सो, लामा फेरा के साथ मैं काउंसलिंग भी करती हूँ। भाई अपना माइंडसेट चेंज करो। अगर हार्ट चक्र किसी का पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप इशू आए हैं और वो उसी टाइम पे उसका डेथ भी हुआ है, व्हेन ही और शी इज़ हैविंग अ रिलेशनशिप प्रॉब्लम, तो वो भी कैरी कर रहे हैं। उसको हम बैलेंस कर सकते हैं बाय बैलेंसिंग आवर हार्ट चक्र एंड बैलेंसिंग आवर माइंडसेट। जैसे एक बच्चा आया मेरे पास, एक लड़की आई, उसकी शादी नहीं हो रही थी, मगर उसका माइंड ही इतना था कि मुझे करनी नहीं है, मेरे को तो अच्छा मिलेगा ही नहीं। जब आप ये कह रहे हो मुझे अच्छा लड़का मिलेगा ही नहीं, तो यूनिवर्स सुन रहा है ना, और यूनिवर्स क्या करता है, तथास्तु। इसलिए बहुत सारे लोग हैं सब कुछ करते हुए भी, मगर अगर वो रोते रहते हैं ना, if they only talk about negative things, they can never achieve any kind of success. उनको positivity मिल नहीं सकती। Your subconscious mind is very powerful, but you say what you think, that come back to you. So I always say please अच्छा सोचो अपने लिए। अब बहुत सारे मैंने पेरेंट्स को देखा है, मेरा बच्चा पढ़ता ही नहीं है, मेरा बच्चा ये नहीं करता, बहुत शैतान है। वो बच्चा सुन रहा है और अपने माइंड में वो ही फीड कर रहा है। तो कुछ नहीं कर सकता, तो वो कुछ करेगा ही नहीं। आप उसको वो ही एनर्जी दे रहे हो, वो ही वो सुन रहा है, और वो ही उसका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है। ही विल स्टार्ट बिलीविंग इट, और यूनिवर्स वो ही देगा जो आप सोचोगे और बोलोगे। तो बहुत सारे पेरेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस में ये मिस्टेक करते हैं, डरते रहते हैं, मैं कर तो रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा।
आप कोई भी चीज़ जब डर से शुरू कर रहे हो तो आप कैसे सक्सेस पाओगे? बिकॉज यूनिवर्स इज लिसनिंग. यूनिवर्स ये नहीं देख रहा ये डर रहा है या ये डर के ये बोल रहा है. यूनिवर्स इज लिसनिंग टू यू एंड यूनिवर्स क्या कहेगा? तथास्तु. आई एम ब्लेस्ड, आई एम पावरफुल एंड आई एम द बेस्ट हीलर इन द वर्ल्ड. तथास्तु. मगर कोई कह रहा है ये तो हो ही नहीं रहा, मेरी तो लाइफ ही खराब है, मेरी नेगेटिव तो थॉट्स. हाँ, तो यूनिवर्स कहेगा ना तथास्तु. सो इट्स बेटर टू स्टार्ट टॉकिंग एंड स्टार्ट thinking positive. Is there a limit to what Lama Fera cannot fix? There is no limit. Lama Fera is powerful and it's the most powerful healing modality. It can fix anything. So where should people draw the line कि being practical और या फिर believe करते रहो कि ये ही वर्क करेगा और बाकी चीज़ वर्क नहीं करेगी? नहीं, ऐसा नहीं है कुछ. ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है. आप अपनी ऊर्जा पे काम करो, मत करो हीलिंग, मगर अपनी ऊर्जा पे काम करके तो देखो, अच्छा सोच के तो देखो. तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे हाथों में है. Okay. Right. So can people become over dependent on healing? Not at all. I will say it is like a multivitamin. कई बार हमें पता है ना, हमें वीकनेस फील हो रही है तो हमें मल्टीविटामिन्स लेने हैं. अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो आप तभी लो, अदरवाइज इट्स नॉट नेसेसरी. इफ़ यू आर वर्किंग ऑन योर एनर्जीज बाय योरसेल्फ, यू डोंट नीड अ हीलर. Okay. Yeah. So what are 2 to 3 things जो हमें listeners सुन रहे हैं, they can start tomorrow to heal their energy, to protect their energy? Start meditating. Okay. मेडिटेशन, मंत्र जाप. किसी भी देवी देवता से आप कनेक्टेड हैं, मंत्र जाप करो, बट विद द राइट फ्रीक्वेंसी, विद राइट टेक्निक. अब लोग राम राम जाप करते हैं, राम 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 राम. दैट डजंट वर्क. राम में भी एक फ्रीक्वेंसी है, जैसे ओम में एक फ्रीक्वेंसी है, राम में भी एक फ्रीक्वेंसी है, ओम नमः शिवाय में भी एक फ्रीक्वेंसी है. बट यू शुड नो हाउ टू चैंट इट, अदरवाइज इट्स ऑफ नो यूज़. आप 11 बार करो या 108 बार करो, दैट वोंट वर्क फॉर यू. इट शुड बी डन विद द राइट फ्रीक्वेंसी. And like how they can cleanse on a regular basis? 2-3 Salt bath. Salt bath. And बहुत ईजी है. द स्प्रे आई टोल्ड यू. yeah. वन ईजी, अगर किसी को लगता है मुझे नज़र लग रही है तो एक लेमन लो. लेमन और नारियल आर वेरी हायर इन फ्रीक्वेंसी. आपको पता है मंदिर में नारियल क्यों चढ़ता है? बिकॉज बहुत लोगों को पता है, मतलब नहीं पता, मंदिर जा रहे हैं नारियल चढ़ा रहे हैं, मगर क्यों चढ़ा रहे हैं आज तक नहीं पता. नारियल की फ्रीक्वेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है. अच्छा. नारियल पॉजिटिव एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर लेता है. Okay. और नारियल नेगेटिव एनर्जी को भी ऑब्जॉर्ब कर लेता है. जैसी एनर्जी होगी नारियल उसको ऑब्जॉर्ब कर लेगा. तो आप नारियल लो या नींबू लो, अपने ऊपर 7 बार वारो. जब 7th टाइम वो हेड पे आए तो उसको बॉडी से क्रॉस करते हुए घर के बाहर रनिंग वाटर में डाल दो. So we hear about things like carrying salt, Yeah. right? So salt कौन सा वाला? Like 2 टाइप के salt आते हैं ना. एक तो जो हम रेगुलर घर में यूज करते हैं फॉर कुकिंग, एक थोड़ा सा रॉक सॉल्ट. हाँ, रॉक सॉल्ट. रॉक सॉल्ट अगर आप एप्सम सॉल्ट. एप्सम सॉल्ट लो, रॉक सॉल्ट लो. रॉक सॉल्ट ऐसा रहता है कि दैट absorb negative energy more than a normal salt. Okay, and Epsom salt? That's also the same. That Okay. balance your energy. I would say जोन सा भी salt मिल रहा है, but करो. Every day take salt bath. अगर जो कोई रात को नहीं वो पैर डिप कर पा रहा, मॉर्निंग में when you go to shower, salt को आप बॉडी वॉश में मिक्स कर लो और उसको अपनी बॉडी पे स्क्रब करो and wipe it off. I have also seen कि आप even you give salt उनको मंत्रा के साथ चेंट करके. How effective are they? So what I usually do, मैं उसको सिम्बलाइज salts, करती हूँ. अच्छा. देखो okay. सॉल्ट भी बहुत सारे लोगों के हाथों से निकल के आ रहा है. शॉपकीपर के हाथ में था, आपके हाथ में था. सॉल्ट ऑब्जर्व दैट नेगेटिव एनर्जी. तो मैं उसको जब सिम्बलाइज करके देती हूँ तो सॉल्ट में पावर्स आ जाती हैं. मैं लामा फेरा के सिंबल से सॉल्ट को क्लेंस करके देती हूँ ताकि वो आपको अच्छे से क्लेंस कर सके.
ऐसा भी बोला जाता है ना कि घर पे नमक का डिब्बा खुला नहीं रखना चाहिए क्योंकि सॉल्ट एब्जॉर्ब्स नेगेटिविटी, तो इज इट एग्जैक्टली, ट्रू? यस दैट्स ट्रू। उसको ओके, ज़्यादा देर खुला जैसे नहीं रखना आपने चाहिए, कुकिंग की फटाफट से उसको बंद उसको कर बंद दो। कर दीजिए। ओके, सो फ्यू क्विक क्वेश्चंस नेहा, या व्हाट इज वन हैबिट दैट डैमेजेस आवर एनर्जी द मोस्ट? नेगेटिव थॉट्स। Okay. Any quick aura cleansing rituals people can do at home? सॉल्ट बाथ डेली। Okay. Are there simple rituals apart from cleansing rituals which they can do at चैंट home? मंत्रास। Okay. Does meditation alone help or do we need any guidance? Meditation works lovely, but if you combine meditation and chanting, both will help you good. Okay. One chakra that people ignore the most. ऐसा कुछ नहीं है। Every chakras have their own rule, and people nowadays even don't know what exactly it is. Okay. One habit that blocks energy. Negative thoughts again, I would say. Lot of negative thoughts, lot of overthinking. Okay. One quick way to feel calm instantly. Breath exercise and chanting of Om. Like inhale from your nose, exhale from your mouth. Chanting of Om. Yes. Positive mindset or energy cleansing? Both. Which is first? Both. Meditation or grounding? Again, depends on the person. If you have time for meditation and grounding both, you can opt for 1 day meditation and one day for grounding. Okay. One habit for instant calm. Deep breathing and meditation. One last question, Neha. अगर if someone wants to buy the stool, you know, क्योंकि कुछ इस एपिसोड को देख के काफी जने, you know, they'll start searching on Google कि tool क्या है. So when the stool is available online, so can anyone buy it and, you know, can check their chakras? No. No. If a person don't have positive energy, उसी की energy negative है तो वो तो हमेशा negativity ही की तरफ ही रहेगा, and it takes lot of practice. आप अगर इसको 90 degree पे नहीं रखोगे, you don't know how to hold it, it won't give you the result. And a person who is having a disturbed chakras, वो अपनी energies कैसे scan करेगा? वो दूसरों को भी नहीं scan कर पाएगा, अपने आप को भी scan नहीं कर पाएगा. Not possible for everybody. Okay. So when you are using this tool, so how do you check your energy? Because in front of, वैसे I don't need to because I can sense. In front of mirror. In front of mirror, but otherwise I can sense it. For that मुझे अभी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है. अगर मुझे नज़र लगी है, मुझे instantly I could feel and I start my cleaning. I start giving myself symbols. Otherwise, in front of mirror, I can do that. Neha, this was really, you know, interesting session. काफ़ी कुछ पता चला, you know, about healing, chakras and all. But before we close this session, we'll have a fun segment. Sure. So Neha, our fun segment is now glow timer game. So there are timers on the table, 20 second, 30 second, 1 minute and 2 minute. Okay. So we'll start with 20 second first. So you'll have to answer in 20 second first. I'll ask you a question and you have to answer in 20 second. So we'll start with one daily habit जो energy clean रखे. Chanting and salt bath. Wow, you तो necked in 10 second only. So let's start with now 30 second. अगर किसी की energy drain हो रही हो, पहला step क्या लेना चाहिए? Scanning. A person, अगर आपको सिर्फ डाउट हो रहा है कि शायद हो सकता है, स्कैनिंग के लिए आओ. जैसे ब्लड टेस्ट आप करवाओगे, आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है बॉडी में. ऐसे ही स्कैनिंग से आपको पता चल जाएगा कि क्या अनबैलेंस है और क्या बैलेंस है. वाओ नेहा, आप तो टाइमर के पहले फिनिश कर रहे हो. नाउ 1 मिनट. क्या हीलिंग सिर्फ बिलीफ है या एक्चुअल फिजिकल चेंजेस भी आते हैं स्किन में, ब्लड में? हीलिंग सिर्फ बिलीव नहीं है, हीलिंग सब कुछ है. इट्स योर ऊर्जा. आपकी ऊर्जा आपकी पहचान है, आपकी एनर्जी आपकी पहचान है. योर बॉडी इज़ जस्ट टेम्पररी, योर ऊर्जा इज़ फॉर एवर. अपनी ऊर्जा को इतना प्योर कर लो. ऊर्जा इज़ लाइक अ शील्ड, एक कवच है आपका. अगर आपकी ऊर्जा स्ट्रॉन्ग है ना, जितनी भी नेगेटिविटी आ जाए बाहर से, उस कवच को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि वो नेगेटिविटी आए और यहीं से बाउंस बैक कर जाए. सो व्हेन यू हैव अ पॉजिटिव एनर्जी, व्हेन यू हैव अ स्ट्रॉन्गर ऑरा, तो कुछ भी पॉसिबल है. Wow, again before the time.
Now 2 minutes last. अगर किसी को लाइफ में स्टक फील हो रहा हो, लाइक ग्लो रिलेटेड या मनी रिलेटेड या रिलेशनशिप सब ही ब्लॉक है, तो कैसे पता चलेगा कि इशू एनर्जी का है? अगेन अगर आपको लग रहा है दैट यू वर नॉट बॉर्न पुअर एंड बहुत सारे लोग हैं कि बहुत गलत सिचुएशन में भी वो बहुत कुछ कर पाते हैं. आपने देखा है कि कहीं एक ऑटो वाले का बच्चा आईएएस ऑफिसर बन रहा है. दैट इज़ द बिलीव एंड द ऊर्जा. जब आप विश्वास करते हो ना अपने ऊपर, तो आपकी ऊर्जा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. कभी भी आप फेलियर नहीं कर पाओगे. यू हैव दैट माइंड सेट, यू हैव दैट. अगर आपका माइंड अच्छा है तो आपकी ऊर्जा पॉजिटिव रहेगी. मगर हम डर से अपनी ऊर्जा को इतना कमज़ोर कर लेते हैं कि वो आसपास की जो नेगेटिविटी है ना, वो आपकी ऊर्जा से क्रॉस होके आपकी बॉडी में आ जाती है. Interesting, Neha, and you really nailed the game. You answered it. तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी सबको. आपकी ऊर्जा आपकी कवच है. जैसे आजकल वॉर हो रही है, राइट? वहाँ पे सोल्जर्स ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ है. बट व्हाट इफ़ द सोल्जर इज़ नॉट वेयरिंग अ बुलेट प्रूफ जैकेट? तो बुलेट आएगी और सीधा उसको लग जाएगी, है ना? आपकी ऊर्जा वो बुलेट प्रूफ जैकेट है जो आसपास की नेगेटिविटी से आपको बचा के रखता है. तो अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट इतनी अच्छी क्वालिटी का रखो कि जितनी मर्जी बुलेट्स आ जाए वो आपको हिट ना करे. Interesting, Neha. It was really fun with you. Enjoyed with you. Same here. Thank you. Neha, before we close, I have a small token of love for you. Oh, that's so sweet. So, Neha, this is from my baby brand Nepo Berry, Oh, and we have customized something for you if you love reading. So it's a I bookmark love reading. with your Oh, that's Neha. customized photo. See, That's so sweet. That's wonderful. try it Thank and you. let us know. Sure, sure. I hope ये जैसे ऊर्जा काम करती है and you feel wonderful from inside and it will make wonderful from outside. Of course. And Thank this you. is as a lucky charm for you. Oh, that's wonderful. That's so Yeah. sweet of you. Thank you, Neha. Thank you, Ghazal. Thank you for having me here. And just like that, we come to the end of season 2 of Skin Coffee with Ghazal. This season was not just about conversation, it was about connection. We spoke about astrology, numerology, healing, hair, fitness, and styling. But deeper than that, we spoke about alignment. Because glow was never just about the skin, it was always about your energy, your choices, your truth. To every expert who shared their wisdom, and to every one of you who watched, listened, and grew with me, thank you for being a part of this journey. If season 1 was about discovering your skin and season 2 was about understanding your glow, then what's coming next is going to be even bigger, because this is just the beginning. Until we meet again, take care of your skin, your mind, and your energy. And remember, your glow is your power. Own it. Like, share, and subscribe to Glow with Ghazal for more such glow secrets.